हाँ, क्या बात। सवाल। हम्म। हम्म। ক্রমশ পরিস্থিতি অবনতির দিকে। ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে এবার উদ্বিগ্ন জাতিসংঘ। স্পষ্ট ভাষায় এবার বার্তা দিয়ে দিল জাতিসংঘ। কয়েকদিন ধরে পুশ ইন বিতর্কে উত্তাল বাংলাদেশ আর ভারতবর্ষ স্পষ্ট। क्या शानदार इस्तेकबाल मलेशिया के अंदर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान और उनके साथ उनकी वाइफ डॉक्टर जुबैदा। अच्छा दोस्तों, ये जो मलेशिया के अंदर इस्तेकबाल हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिस्ट्री को रिपीट इसलिए किया गया है कि जो जनरल जिया थे, इनके वालिद, इनके फादर तारिक रहमान के जो जनरल जिया थे, वो जब जाते थे तो उनका स्टाइल भी ड्रेसिंग कोट इसी तरह पहनकर वो जाते थे जिस तरह तारिक रहमान गए हैं। और जिस तरह से भाई साहब वेलकम हुआ है ना मलेशिया में, वो तो कमाल कर दिया है। रेड कारपेट इस्तकबाल, वार्म वेलकम। और फिर दूसरी खबर यह है कि यूनाइटेड नेशन ने एडवाइस दी है, यूनाइटेड नेशन ने खबरदार किया है, अलर्ट किया है कि आप हाई लेवल मीटिंग करें और इस मसले को खत्म करें। ये पुश बैक पुश इन जो कॉन्फ्लिक्ट है बांग्लादेश का इंडिया के साथ बॉर्डर के ऊपर, वो कह रहे नहीं तो एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। इसके ऊपर अब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो बड़े अजीब किस्म के तज्जिए एनालिसिस कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, दो वीडियो हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो दोनों वीडियो देखेंगे। एक तो तारिक रहमान जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मलेशिया के सफर पर हैं, उनका क्या ही शानदार जानदार दमदार वार्म वेलकम हुआ है मलेशिया में, हिस्टोरिक वेलकम उनको किया गया है। और फिर उनकी वाइफ भी उनके साथ हैं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये वीडियो देखते हैं और फिर एक वीडियो और भी है जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बांग्लादेश इंडिया का, इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है। और फिर ह्यूमन राइट्स की जो वॉच है, एक उनकी तरफ से भी एक जो रिपोर्ट है वो सामने आई है, किस तरह से जो इंडियन बंगाली हैं उनको पुशबैक करने की कोशिश किया जा रहा है। इंडियन बंगाली मुस्लिम है जो, उनको पुशबैक करने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश वाली साइड पर, यानी इलीगली। तो दोस्तों, इसके ऊपर दो वीडियो हैं, दोनों देखेंगे। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इन वीडियो को जरूर देखिएगा। 3 2 1 एंड क्यू। हम्म। 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 हम्म।
পরিস্থিতি অবনতির দিকে। ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে এবার উদ্বিগ্ন জাতিসংঘ। স্পষ্ট ভাষায় এবার বার্তা দিয়ে দিল জাতিসংঘ। কয়েকদিন ধরে পুশ ইন বিতর্কে উত্তাল বাংলাদেশ, আর ভারতবর্ষ স্পষ্টতই আইন দেখাচ্ছে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদেরকে তারা নিজেদের দেশে রাখবে কেন। কারণ অনুপ্রবেশ মুক্ত দেশ এখন এটাই তাদের প্রাথমিক এবং মৌলিক লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতবর্ষের অমিত শাহ তিনি বার্তা দিয়েছেন একেবারে নিয়ম মাফিক নিয়ম করে ফিরিয়ে দিতে হবে এই অবৈধ বাংলাদেশিদের। কিন্তু বাংলাদেশ বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বর্ডার গার্ড অফ বাংলাদেশ তারা কিন্তু কোথাও না কোথাও অমানবিক হয়ে উঠছে। আর সেই অমানবিক ছবি দেখেই উদ্বিগ্ন জাতিসংঘ। জাতিসংঘের মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারি বলে দিলেন দুদেশকে এই সমস্যার সমাধানে আলোচনায় বসা দরকার। অর্থাৎ বাংলাদেশ এবং ভারতকে আলোচনায় বসতে হবে, আলোচনায় বসে সমাধান সূত্র বের করতে হবে। পুশ ইন বিতর্ক নিয়ে বাংলাদেশ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তথ্য দেখাচ্ছে। তারা বলছে ভারত থেকে যে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানুষজনকে তারা নাকি অনুপ্রবেশকারী, অথচ ভারত কিন্তু বাংলাদেশকে বারে বারে জানাচ্ছে যে এদের কাছে বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ আছে। তাহলে কেন বর্ডার গার্ড অফ বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের সরকার অস্বীকার করছে? ফলে এই দুইয়ের টানাপোড়েনের মাঝে পড়ে জিরো লাইনে নারী থেকে শিশু 8 থেকে 80 অনেক জন আছেন যাদেরকে সীমান্ত থেকে ভারতবর্ষের এপার থেকে ওপারে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জিরো লাইনে বা জিরো পয়েন্টে তারা দিন কাটাচ্ছেন। বৃষ্টিতে ভিজছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো জুটছে না, মাঠের মধ্যেই পড়ে থাকতে হচ্ছে, জমির মধ্যে পড়ে থাকতে হচ্ছে। এ যেন এক করুণ দৃশ্য। আর সেই করুণ দৃশ্য দেখে এবার জাতিসংঘ রিয়াক্ট করলো। তাতে তারা বলছে ভারত এবং বাংলাদেশের একসাথে বৈঠক করে আলোচনায় সমাধান দরকার। যদিও ভারতবর্ষ বলছে এর আগেই তো বিজিবি এবং বিএসএফ দিল্লিতে বৈঠক হয়েছিল, সেই বৈঠকে বর্ডার গার্ড অফ বাংলাদেশ কোনো কথা শোনেনি। বিএসএফ দেখিয়েছিল, বুঝিয়েছিল আইন মেনে কিভাবে তারা কাজ করছে। এবং এই যে বাংলাদেশি নাগরিকদেরকে বাংলাদেশে ফেরত দেওয়া হচ্ছে, বাংলাদেশের উচিত সমস্ত নিয়ম আইনকে গুরুত্ব দিয়ে এই সমস্ত মানুষগুলোকে গ্রহণ করা এবং সসম্মানে তাদেরকে বাংলাদেশে বাস করতে দেওয়া। আদতে তো এরা বাংলাদেশি নাগরিক। জাতিসংঘের কাছে কিন্তু এমন অনেক তথ্য, এমন অনেক ডকুমেন্ট। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट पुश इन के ऊपर, और फिर एक वीडियो तारिक रहमान जो मलेशिया के सफर पर गए। आपको बताएं कि मलेशिया से वो जाएंगे सीधा बीजिंग चाइना, और ये जो सफर है, ये जो विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ही गहरी नजरों से देखा जा रहा है इंडिया की तरफ से। उनके जो थिंक टैंक हैं कि देखें यार वो इधर नहीं आए, पहले इससे जो भी इलेक्ट होता था प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश का वो सबसे पहले दिल्ली की यात्रा आता था, और लेकिन अब ये जा रहे हैं बीजिंग में, अब ये जा रहे हैं कोलालमपुर, अब ये जा रहे हैं मलेशिया। तो भाई जो बांग्लादेश की पॉलिसी है की बीएनपी की कि बांग्लादेश फर्स्ट, उसके ऊपर अब अमल होता हुआ आपको नजर आएगा। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।